Hello students, a very good morning to all of you. We have already started the chapter digestion and absorption, in which the two important topic we have done, that is about the alimentary canal and about the digestive glands. Okay, now today I will take up the digestion process. So before to start with the digestion, let's know first, when we take up the food into our oral cavity, the process that is called as the swallowing. Okay, first we should know what is swallowing. swallowing का मतलब क्या है? इनटेक ऑफ द फूड, मतलब जब खाना आप अपने मुंह के अंदर डालते हो, ओरल कैविटी के अंदर डालते हो, देन इट इज़ कॉल्ड एज द swallowing. ओके, और अब इसके अलग अलग स्टेजेस हैं. देखो, जब माउथ के अंदर जो फूड जाता है, देन इट फॉर्म द it join with the saliva and mix, the tongue help to mix the saliva with the food, and the mass of the food is called as the bolus. Okay, are you getting my point? The food that get mixed with the saliva, that is called as the bolus. Now the food or the bolus that move inside the oral cavity, that move into the pharynx and then into the oesophagus by the combined activity of the tongue, पैलेट, ऑइसोफेगस एंड फेरेंक्स. ओके, कंबाइन एक्टिविटी, इन सब के मिलके काम करने से क्या होता है कि जो फूड है वो नीचे उतरता है, मतलब अंदर की तरफ जाता है. दैट इज़ कॉल्ड एज द swallowing. When we talk about the swallowing, there are three different phases are there. यानी कि जब खाना आपके मुंह के अंदर जाता है और ऑइसोफेगस तक आता है, we have the three stages. The very first stage is called as the voluntary stage. Voluntary stage, and second stage is the pharyngeal stage, and third is called as a oesophageal stage. समझ आया आपको? तो सबसे जो पहली स्टेज है वॉलेंट्री स्टेज, सबसे पहले क्या होता है? टंग ब्लॉक द माउथ, द बोलस इज फोर्स टू मूव फ्रॉम द माउथ टू द pharynx, that is called as the voluntary stage. means oral cavity से जो food है वो pharynx की तरफ जाता है, आप अपने हाथ से अपने मुंह की तरफ खाना डालते हो, that is called as the voluntary stage. Then there is the pharyngeal stage, means in the first stage bolus move from the oral cavity into the pharynx. Okay, then in the pharyngeal stage, now the food that move from the pharynx towards the pharynx to oesophagus. Okay, and in the last stage it move down into the oesophagus, that is called as the oesophageal stage. समझ आया? तो swallowing, the intake of the food, it has the three different phases: voluntary phase, pharyngeal phase and oesophageal phase. अब बात आती है कि जब खाना हमारी फूड पाइप के अंदर चला गया, तो यहाँ पे मीन्स फूड पाइप के अंदर जब ये मूव कर रहा है, तो कहते हैं ये अंदर अपने आप जब मूव करता है, तो देयर इज अ स्पेशल मूवमेंट दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस. पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, दैट कॉज द मूवमेंट ऑफ द फूड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल. देयर इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. मीन्स ये फूड पाइप है और इसके अंदर यहाँ पे मान लो खाना है, तो ये पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है. यहाँ पे फूड है, तो यहाँ पे देयर आर द सर्कुलर मसल्स आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द बोलस. ये फूड है जो कि मूव कर रहा है, एंड देयर आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज सर्कुलर मसल and which are present above the bolus or above the food, and the longitudinal muscles that are just below at the end of this bolus. These muscles contract and that will push the bolus downward, and these muscles contract to move it further. तो इस तरीके से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती हैं that cause movement of the food into the oesophagus. Are you getting my point? So this is called as the peristalsis movement, which is responsible for the movement of the food into the alimentary canal. Okay, and this way means the contraction of this that cause the movement of food from the oesophagus then to the stomach. Continuous movements occur and then move to the small intestine, large intestine, and finally the undigested food come out from the body
through the rectum. Okay, so this is a very important movement that play important role in the digestion process. Means basically it causes a movement. Okay, then next I'll take up the part that is the digestion of the डिफरेंट थिंग्स मीन्स जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है. जब भी आप खाना खाते हो तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं. अब ये सारे कंपोनेंट हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से डाइजेस्ट होते हैं. जब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की, नेक्स्ट आई विल टेक अप द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन. दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन. Means when we eat the food, the different component of the food that are digested by the different enzyme, and all these things like the carbohydrate, proteins and fats and nucleotide, these all are the means polymers are present in the body that are made up of the monomeric unit. Means they are the long chain. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, they are made up of the polysaccharide. Proteins are there which are made up of aminopeptides. Okay, and fats that are lipids that are made up of the fats and the means triglycerides etc. Okay, तो आप ये पढ़ोगे आगे बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में कि these all are the polymers which are made up of the monomeric unit and they are formed of the anhydro bonds. Means the monomeric unit, they are joined by removing the water. Okay, so when these polymers are treated with water, they break down into the monomeric unit and this is called as the hydrolysis. What is hydrolysis? The breaking down of the polymers into its monomers in the presence of the water. We have the different type of enzyme like carbohydrases. ध्यान देने वाली बात है बेटा, जैसे कार्बोहाइड्रेजेस हैं. अब ये कार्बोहाइड्रेजेस क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. जैसे कि पॉलीसेकेराइड है तो उन्हें डाइसेकेराइड या मोनोसेकेराइड में तोड़ा जाएगा. जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, तो उनको उसकी बेसिक यूनिट में ये तोड़ देंगे. यही तो है ना डाइजेशन. डाइजेशन क्या है, ब्रेकिंग डाउन. और यहाँ पे इसको हमने हाइड्रोलिसिस कहा है बिकॉज इट इन्वॉल्व द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. तो कार्बोहाइड्रेजेस क्या हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. फिर अगर हम बात करें प्रोटीएजेस, ये वो एंजाइम है जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेंगे. यानी कि लॉन्ग चेन है अमीनो एसिड्स को, उसको छोटी चेन्स में तोड़ेंगे, डाईपेप्टाइड्स में तोड़ेंगे और फिर हमें क्या मिलेगा, अमीनो एसिड फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगी. When we talk about the lipids they compose of the triglycerides and glycerol and fat. So triglyceride they convert into diglyceride, then it will break down into monoglyceride and then they form the fatty acid and glycerol. Is it clear? ये धीरे धीरे आपको मैं इन सब की डाइजेशन बताऊंगी, पर अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें पॉलीमर्स हैं. पॉलीमर का मतलब क्या है कि दे आर मेड अप ऑफ द स्मॉलर यूनिट्स विच आर बाउंड टुगेदर एंड व्हेन दे आर ट्रीटेड विद द एंजाइम्स दीज पॉलीमर्स दे ब्रेक डाउन इनटू इट्स मोनोमेरिक यूनिट्स. ओके, फिर आते हैं हमारे पास न्यूक्लिएजेस, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं. अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएजेस क्या करेंगे, इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में. और न्यूक्लियोटाइडेजेस एंजाइम क्या करेंगे, न्यूक्लियोसाइडेजेस प्रोड्यूस करेंगे और ये फर्दर इसको ब्रेक डाउन कर देंगे शुगर में और नाइट्रोजनस बेस में. ये थोड़ा एक बार में समझने के लिए आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि अभी आपने बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ा, पर इसको यहाँ बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो डाइजेशन है वो बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों में तोड़ता है. ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर एंड द एंजाइम. तो जो चीज़ जिसकी से मिलकर बनी है डाइजेशन के बाद वो उसी में ही ब्रेक डाउन हो जाएगी. जैसे पॉलीसेकेराइड है, बहुत सारे जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं ज्वाइन करके कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, तो जब वो ब्रेक डाउन होंगे दे विल कन्वर्ट इनटू इट्स मोनोमेरिक फॉर्म. और अगर प्रोटीन्स हैं वो किस में टूटेंगे, अमीनो एसिड में. और जो न्यूक्लिएजेस हैं वो किस पे एक्ट करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स पे. और आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड वी हैव द फॉस्फेट. ओके, तो इस तरीके से हम वन बाय वन वी विल टेक अप द डाइजेशन ऑफ द फूड. तो फर्स्ट आई विल टेक अप द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. ओके,
हाँ जी बेटा, जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? दे आर पॉलीसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। मीन्स कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन, जैसे पॉलीसेकेराइड्स दे ब्रेक डाउन इनटू डाइसेकेराइड एंड फर्दर ब्रेक डाउन इनटू मोनोसेकेराइड यूनिट। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, दे आर द पॉलीसेकेराइड एंड व्हेन दे आर डाइजेस्टेड बाय द कार्बोहाइड्रेजेस द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम देन दे प्रोड्यूस ग्लूकोज। ठीक है बेटा। अब जो स्टार्च है, सेलुलोज है, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपलर फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज अ डाइजेशन वेयर इट इज़ प्रेजेंट। जैसे पोटैटो के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, इवन दूध के अंदर शुगर्स आर प्रेजेंट। ओके, डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर्स आर प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स बट वी ईट। यानी हमने बिस्किट खाया, ब्रेड खाया, पोटैटो खाया, रोटी खाई, चावल खाए, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द ओरल कैविटी। सबसे पहले आता है हमारे पास ओरल कैविटी के अंदर। इम्पॉर्टेंट बात है, अब आपको पता है आपके मुंह के अंदर, देखो ओरल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? सलाइवा। जैसे ही आप खाना मुंह में डालते हैं तो वो क्या बन जाता है? सलाइवा मिक्स हो जाता है उस खाने के साथ, उसको हमने क्या कहा था? बोलस। ओके, अब जो सलाइवा है सबसे पहले वो क्या करता है? जो खाने की एसिडिटी है उसे न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है बेटा। उसके बाद सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज स्टाइलिन, और जिसे मेनली हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है बेटे। ये एंजाइम क्या करता है? सलाइवरी अमाइलेज हमारे जो खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट हैं उसको कन्वर्ट करेगा छोटे यूनिट्स के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले जो डाइजेशन है वो हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। तो कहते हैं कि 30% कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो यहीं डाइजेस्ट हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम खाना चबा के खाते हैं तभी हमारे फूड जो है वो हमारा प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो सलाइवरी अमाइलेज है वो हमारे खाने के ऊपर मुंह में ही एक्ट करता है। जैसे ही खाना नीचे जाता है तो स्टमक में अमाइलेज का एक्शन स्टॉप हो जाता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। क्यों? क्योंकि पेट के अंदर हाईली एसिडिक कंडीशन होती है जिस पे अमाइलेज वर्क नहीं करता, तो गैस्ट्रिक अमाइलेज वर्क नहीं कर पाएगा इसके ऊपर, फिर इंटेस्टाइन में जाकर इसकी डाइजेशन होगी। तो अगर हम खाना चबा के खाएंगे तो हमारे मुंह के अंदर ही जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो डाइजेस्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा। तो जो सलाइवरी अमाइलेज है इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? ये कन्वर्ट करेगा किसको? ये कन्वर्ट करेगा स्टार्च को किसके अंदर? दैट इज द माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज प्लस अल्फा डेक्स्ट्रिन। ठीक है बेटा। अल्फा डेक्स्ट्रिन यानी कि जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स थे दे गेट कन्वर्ट इनटू द डाइसेकेराइड एंड पीएच इज हियर 6.8। ओके, तो इसके अंदर और क्या क्या प्रेजेंट है? लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है। और क्या प्रेजेंट है? थायोसाइनेट प्रेजेंट है। ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट है जो एसिडिटी को कम करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को। ठीक है बेटा। और थायोसाइनेट और जो लाइसोजाइम है दे आर एंटी बैक्टीरियल इन नेचर, यानी कि ये बैक्टीरिया को किल करते हैं। यानी कि अगर आपने खाना खाया और अगर उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे हमारे मुंह के अंदर, अगर आप उसे प्रॉपरली मिक्स करने का टाइम देंगे तो एक काम तो ये होगा कि जो भी अगर उसके अंदर बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं वो वहीं ख़त्म हो जाएंगे बाय द एक्शन ऑफ द लाइसोजाइम एंड थायोसाइनेट। दूसरा प्लस पॉइंट क्या होगा बेटा कि जब आप खाना अंदर लेकर जाओगे और मुंह के अंदर उसको प्रॉपर टाइम दोगे तो जो सलाइवरी अमाइलेज है वो प्रॉपरली उसके साथ बोलस के साथ प्रॉपरली मिक्स होगा और फूड के कार्बोहाइड्रेट पार्ट के ऊपर एक्ट करके प्रॉपरली उसे ब्रेक डाउन कर देगा। समझ आई ये बात? तो ये था आपके मुंह के अंदर डाइजेशन। ठीक है। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनके मुंह के अंदर सलाइवरी अमाइलेज नहीं होता, तो खाना एक बार उनके मुंह, जैसे हर्बीवोर्स एनिमल हैं तो उनके मुंह के अंदर सलाइवरी अमाइलेज नहीं है, तो वो क्या होता है कि खाना एक बार बॉडी के अंदर चला जाता है स्टमक में, वहाँ डाइजेस्ट होता है। मीन्स इसमें हम
हर्बीवोर्स एनिमल का जो डाइजेशन का मैकेनिज्म है वो दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। उनके मुंह के अंदर जो है सलाइवरी अमाइलेज जो नहीं प्रेजेंट होता, काओ और बफेलो के अंदर सलाइवरी अमाइलेज इज एब्सेंट, ओके। फिर उसके बाद आता है ओरल कैविटी से खाना कहाँ जाएगा, आपको बताया था मुंह के अंदर है, फेरेंक्स से होता हुआ फिर कहाँ आएगा, ऑइसोफेगस में, ऑइसोफेगस से कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर। लेकिन स्टमक में क्या है, गैस्ट्रिक अमाइलेज प्रेजेंट ज़रूर है पर हाईली एसिडिक कंडीशंस होने की वजह से वहाँ पे ये वर्क नहीं कर पाता। तो यानी पेट में आपके कार्बोहाइड्रेट की कोई डाइजेशन नहीं होती। देन द फूड मूव इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। सो नेक्स्ट इज द डाइजेशन ऑफ carbohydrates in small intestine, ठीक है बेटा। अब होता क्या है, अगर आपको याद हो कि जब खाना आपके पेट में है तो अब हाईली एसिडिक कंडीशंस हैं, तो इंटेस्टाइन से क्या रिलीज होता है, ब्रूनर ग्लैंड से म्यूकॉइड फ्लूइड रिलीज होता है जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइनल लाइन को, ताकि हाईली एसिडिक कंडीशंस से जो काइम आ रहा है पीछे से, जो स्टमक से जो फूड आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज अ, जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है दैट इज़ कॉल्ड काइम। क्या कहते हैं, जैसे जो मुंह से फूड नीचे उतरा था उसको हमने कहा था बोलस, और जब ये स्टमक में चला जाता है नाउ इट इज़ हाईली एसिडिक एंड इट इज़ कॉल्ड एज काइम। तो कहीं इस हाईली एसिडिक कंडीशन की वजह से लाइनिंग के ऊपर इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए म्यूकॉइड फ्लूइड रिलीज होता है, ताकि वो म्यूकस, बेसिकली जो म्यूकस सेल्स हैं म्यूकस सिक्रीट करेंगी, ब्रूनर ग्लैंड म्यूकॉइड फ्लूइड रिलीज करेंगी, ताकि जब तक पैंक्रेटिक जूसेस और बाइल हैं ना रिलीज हो तब तक वो उसको प्रोटेक्ट करके रखें, ओके। देन पैंक्रेटिक जूस एंड बाइल जूस, बाइल जूस कहाँ से आता है, लिवर से, और पैंक्रेटिक जूस कहाँ से आता है, पैंक्रियाज से। तो जब पैंक्रियाटिक जूस आएगा तो वो अपने सिक्रीशन सिक्रीट करेगा, तो क्या होगा, एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा, एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस का एक्शन क्या होगा कि स्टार्च है कन्वर्ट बाय द पैंक्रियाटिक अमाइलेज into maltose plus isomaltose plus अल्फा डेक्सट्रिन्स, ठीक है बेटा। तो पैंक्रेटिक जूस के अंदर जो पैंक्रेटिक अमाइलेज था या पैंक्रेटिक अल्फा अमाइलेज था वो कन्वर्ट कर देगा पॉलीसेकेराइड, जो कार्बोहाइड्रेट बच गए अभी भी उनको डाइसेकेराइड यूनिट्स में कन्वर्ट करेगा। फिर आता है हमारे पास एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस, यानी कि जो इंटेस्टाइन से जूसेस आ रहे हैं उससे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन पे क्या इफ़ेक्ट होगा। जैसे सबसे पहले आता है माल्टोज, माल्टेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। फिर आइसोमाल्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमाल्टेज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है बेटा। फिर आता है हमारे पास लैक्टेज, जिसे लैक्टोज, जो दूध के अंदर शुगर प्रेजेंट होती है दैट इज लैक्टोज। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैक्टेज इट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टेज, ठीक है बेटा। फिर आता है सुक्रोज, convert in the presence of enzyme sucrase glucose plus fructose, ठीक है बेटे। उसके बाद अल्फा डेक्सट्रिन्स in the presence of enzyme dextrinase it convert into glucose unit। इज इट क्लियर। तो ये आपको सारा समझ आया। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि कार्बोहाइड्रेट्स दे आर द पॉलीसेकेराइड दैट आर मेड अप ऑफ द डाइसेकेराइड एंड मोनोसेकेराइड यूनिट। तो डाइजेशन का प्रोसेस क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो पॉलीसेकेराइड हैं उनको डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डाइजेशन, ओके।
तो सबसे पहले जब हमारे माउथ के अंदर क्या था, सलाइवरी अमाइलेज था, दैट कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड अल्फा डेक्स्ट्रिन्स। ओके, जब फूड स्टमक में गया दैट इज कॉल्ड एज नाउ काइन व्हेन इट मूव फ्रॉम द स्टमक टू द intestine, small intestine. Here it is not acted upon by any enzyme because gastric amylase will not work here. Is it clear? फिर जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है वहाँ पे इसे क्या मिलता है, पेंक्रियाटिक जूस, जो कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज, आइसोमाल्टोज और अल्फा डेक्स्ट्रिन में। Then it combined with the intestinal juices that act upon that. जो माल्टेज है वो माल्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज यूनिट में, आइसोमाल्टोज को तोड़ के ग्लूकोज यूनिट में बदल देगा, डेक्स्ट्रीनेज अल्फा डेक्स्ट्रिन्स को ग्लूकोज में बदल देगा, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा, और इसी तरीके से लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये था आपके पास डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि अगर आपने चपाती खाई है, बिस्किट खाया है, चावल खाए हैं, राइस खाए हैं या कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाया है, तो उसका आपकी बॉडी में जाने के बाद ब्रेकडाउन कैसे होगा, किस तरीके से जो पॉलीसेकेराइड हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, मोनोसेकेराइड यूनिट्स के अंदर। इज इट क्लियर? इसी के साथ एक और टर्म आती है दैट इज कॉल्ड एज लैक्टोज इनटॉलरेंस। लैक्टोज इनटॉलरेंस का मतलब क्या है, जैसे जैसे हमारी एज एडवांस होती जाती है, जो लैक्टोज है दैट विल नॉट बी एबल टू मीन्स with the advancing age the enzyme lactase is not produced. Okay, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर लैक्टेज एंजाइम नहीं है तो लैक्टोज जो दूध के अंदर प्रेजेंट है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से जो दूध की शुगर्स हैं, लैक्टोज है, वो डाइजेस्ट नहीं होंगी। देन इट कैन कॉज सम प्रॉब्लम लाइक स्टमक एक, फ्लैटुलेंस, लाइक दैट फीचर्स। तो जैसे कई बार आपने देखा होगा कि घर में जो एज्ड पर्सन हैं दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द मिल्क, जब भी वो दूध पीते हैं तो उनके पेट में गैस बन जाना या फिर उनको लूज मोशंस लग जाना, समटाइम वॉमिटिंग आ जाना, मतलब उनको दूध पचता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में जैसे जैसे एज एडवांस होती है लैक्टेज की प्रोडक्शन कम हो जाती है, और लैक्टेज एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है। तो जैसे जैसे एज एडवांस होती है लैक्टेज की डेफिशिएंसी होती है, कमी हो जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द लैक्टोज इनटॉलरेंस। इज इट क्लियर? सम टाइम 2 मार्क्स का ये अलग से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लैक्टोज इनटॉलरेंस? ओके, now I am going to take up the next important topic that is digestion of protein. देखो बेटा, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स थे दे आर मेड अप ऑफ द ग्लूकोज यूनिट्स वी हैव स्टडीड। अब जो प्रोटीन्स हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, अमीनो एसिड से। इट मीन्स जब प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन होगी तो हमें एट लास्ट क्या मिलेगा, अमीनो एसिड। बट देयर आर सो मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। मुंह के अंदर प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। ओके, अब प्रोटीन प्रेजेंट कहाँ है, जितनी भी दालें हैं, मटर है, एग है, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो लेट्स हैव टू स्टार्ट विद द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है बेटा, जितने भी जो एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, these all are released in the proenzyme form, means they are released in the inactive form। क्योंकि अगर all the time ये active रहेंगे then they can cause the breakdown of our own body protein। तो जब हमारी बॉडी में फूड प्रेजेंट है then these enzymes are activated। जैसे आप स्टमक में पढ़ते हो कि there is the release of HCl। ओके, तो HCl जो रिलीज होता है वो क्या करता है, इन इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक अप विद द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस
इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एंजाइम प्रेजेंट होते हैं पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। अगर आपको याद हो, जो पेट के अंदर जब हमने स्टमक का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन दो एंजाइम रिलीज होते हैं और ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। ये एंजाइम एक्टिव होंगे बाय द रिलीज ऑफ द HCl। अब HCl जो है वो कन्वर्ट करेगा पेप्सिनोजन को किसके अंदर, पेप्सिन में। ठीक है बेटा, वंस इट इज एक्टिवेटेड, ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है। अगर एक बार एक्टिव हो जाता है पेप्सिन तो ये बाकी पेप्सिनोजन्स को पेप्सिन में कन्वर्ट कर सकता है। मीन्स ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी कि एक बार एक्टिव होने के बाद ये बाकी इनएक्टिव पेप्सिनोजन्स को एक्टिवेट कर देगा। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन इट इज एक्टिवेटेड, दिस will convert the proteins into peptones and proteoses. Is it clear? तो जब पेप्सिन है वो इसके ऊपर एक्ट करेगा और क्या बना देगा, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसेस। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, गैस्ट्रिक जूसेस का। गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन पड़ा था, तो दूसरा एंजाइम क्या पड़ा था, प्रोरेनिन। और ये प्रो की फॉर्म में क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ये क्या है, इनएक्टिव एंजाइम्स हैं और ये एक्टिव कब होते हैं, व्हेन देयर इज अ फूड प्रेजेंट, अदरवाइज इट विल रिमेन इनएक्टिव। तो जो HCl रिलीज होता है वो क्या करता है, इनएक्टिव पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा और ये पेप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन और प्रोटियोजेस में कन्वर्ट करेगा। अब जो प्रोरेनिन है दैट कन्वर्ट इनटू रेनिन and then this renin that convert the milk protein casein into paracasein, then this paracasein joined with calcium to form calcium paracasinate, and then this calcium paracasinate convert into peptones in the presence of pepsin. Is it clear? तो सबसे पहले प्रोरेनिन कन्वर्ट हुआ रेनिन में in the presence of HCl, then this renin convert the casein into paracasein, then paracasein joined with the calcium to form calcium paracasinate, and then calcium paracasinate form the peptone. तो मैंने आपको बताया था कि पेट के अंदर तीन चीज़ें हैं, एक प्रो एंजाइम्स है, एक HCl है, ओके, और प्रो एंजाइम दो हैं, कौन से, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। तो पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हुआ, पेप्सिन में, जिसने प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर दिया पेप्टोन्स में और प्रोटियोजेस में। इज इट क्लियर? दूसरा हमारे पास था प्रोरेनिन, जिसने रेनिन बनाया और रेनिन ने क्या कर दिया, कैजीन को पैराकैजीन और कैल्शियम पैराकैजिनेट बनाया, जिसने कैल्शियम पैराकैजिनेट कन्वर्ट हो गया पेप्टोन्स के अंदर। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है कि जो HCl है उसके क्या फंक्शन है। सबसे पहला, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। फिर ये क्या करता है, एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन। आपने देखा कि जो ये है वो क्या कर रहा है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को एक्टिवेट कर रहा है। अगर ये ना हो तो वो इनएक्टिव ही रहेंगे और प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होगी, समझ आया। एंड स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज के एक्शन को ये क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। इज इट क्लियर? और हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, इट प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम, इट एक्टिवेट दिस, and then I told you about that it stop the action of the salivary amylase, and then it soft the food, it kills the bacteria, very important, soft the food, and very very important function that it kills the bacteria, क्योंकि ये highly acidic conditions हैं तो वो क्या करेंगी, बैक्टीरिया को किल कर देंगे, समझ आया। तो ये था हमारे पास how the action of gastric juices digest the protein in the stomach, because in stomach the food remain here stored for 4 to 5 hours.
So this digestion occur in the stomach part. Okay. Now it is the digestion of proteins in small intestine. Okay. In small intestine, first I told you about in the stomach. Now small intestine, the food it is now called as the chyme when it comes from the stomach. Acidic food that is coming from the stomach, that is called as the chyme. And now when it reach in the intestine, it receive the pancreatic juices as well as the bile. So what are the different enzymes that it will get? First I will tell you the action of the pancreatic juices. यहाँ मैं आपको बताऊंगी एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूसेस. ठीक है बेटा. तो पैंक्रियाटिक जूस में हमारे पास अलग अलग एंजाइम्स हैं. सबसे पहला है ट्रिप्सिनोजन, देन काइमोट्रिप्सिनोजन, देन प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस. ठीक है बेटा. तो ये जो है एंजाइम ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंटेरोकाइनेज. और ये एंजाइम कहाँ से आया है? स्मॉल इंटेस्टाइन के जूसेस से. फिर है काइमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट इनटू काइमोट्रिप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन, एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस convert into कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस. समझ आया? यानी कि ये तीनों एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस के एक्टिव हो जाएंगे. नाउ व्हाट विल हैपन? द प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस, they all are activated and they are converted by the trypsin, chymotrypsin and carboxypeptidases. ठीक है बेटा. यानी कि ये तीनों जो एक्टिवेटेड एंजाइम थे वो प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोजेस पे एक्ट करेंगे एंड यू विल गेट द डाईपेप्टाइड्स. What you will get? You will get dipeptides. Okay. One more enzyme is there, that is the proelastase. Proelastase that will be converted into elastase, and this elastase convert elastin. Elastase, it convert elastin into dipeptides. Is it clear? Now this is the action of pancreatic juice. Now second is action of intestinal juices. यानी कि फूड के ऊपर जो अब यहाँ बन गया फूड जिसके ऊपर पैंक्रियाटिक जूस एक्ट कर रहे हैं, we have the dipeptides. So what will happen to that by the action of intestinal juices? Now first of all the peptides and dipeptides, they are converted by aminopeptidases, and here the enzyme is dipeptidases. They are converted into amino acids. Finally, तो यही आपको बताया गया था कि finally we will get the protein digested product, that is the amino acid. समझ आया? तो ये सारा आपको लर्न करना है. इसमें मैंने आपको ये बताया कि मुंह के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होती, पेट के अंदर डाइजेशन स्टार्ट होती है, जिसमें सबसे पहले पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एक्टिव होते हैं, जिससे आपको मेन क्या मिला था? पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस. ठीक है बेटा. फिर क्या था? HCl का आपने यूज़ पढ़ा. देन वी हैव द एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस. जब हमने पैंक्रियाज पढ़ा था मैंने आपको बताया था कि 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिनोजन,
काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये तीनों एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि ये इनएक्टिव थे, and it is catalyzed by the enzyme enterokinase which is present in the intestinal juice. Okay, then these protein, अब ये तीनों एक्टिव होके क्या करेंगे, जो हमारे पास पेप्टोन और प्रोटियोजेज आए थे उनको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे किसके अंदर, डाईपेप्टाइड्स के अंदर, एंड फाइनली दीज डाईपेप्टाइड यानी कि लंबी वाली जो प्रोटीन चेन थी वो पेप्टोन्स में प्रोटियोजेज में टूटी, देन दे ब्रेक डाउन इनटू डाईपेप्टाइड, then by the action of intestinal juices we got the two more enzyme. वैसे 3 एंजाइम होते हैं, एक एंटेरोकाइनेज पहले ही यूज हो गया ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में एक्टिवेट करने के लिए, यहाँ पेप्टाइड्स कन्वर्ट हो गए अमीनो एसिड में बाय द एंजाइम अमीनोपेप्टाइडेजेस, एंड डाईपेप्टाइडेजेस दे एक्ट ओवर द डाईपेप्टाइड टू फॉर्म द अमीनो एसिड। तो एट लास्ट आपको प्रोटीन की डाइजेशन के बाद क्या मिलता है, that is the amino acid. Is it clear? समझ आ रही है ये बात आपको? So this is the very very important question, how the digestion of protein occur in our body. Is it clear? Now the next important component of the food, that is the fat. Now how the digestion of fat occur? देखो फैट्स क्या हैं, they are the triglyceride molecule with one glycerol molecule. Okay, so means these are the fatty acids, they will break down into the fatty acid and glycerol. Okay, अब मुंह के अंदर कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं जो मतलब सलाइवा के अंदर एंजाइम नहीं है जो फैट को ब्रेक डाउन कर सके. ओके, देन फूड मूव इनटू द स्टमक. ओके, गैस्ट्रिक लाइपेज somewhat part of the lipid that convert into monoglycerides and glycerol, but here no action, no means protein digestion does not occur more here, the fat digestion does not occur here. Main digestion of the fat occur in the small intestine. Why? Because when the food reaches in the small intestine, in the small intestine it receive the bile juice, that is very very important, that help in the digestion of the fat, because this bile juice that convert the fat into the emulsified fat, that is the emulsification. इमल्सिफिकेशन याद है आपको, यानी कि खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देना, फूड को नहीं मेनली फैट को, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफाइड फैट. देन दिस इमल्सिफाइड फैट इज एक्टेड अपॉन बाय द पैंक्रियाटिक लाइपेज एंड इंटेस्टाइनल लाइपेज. ठीक है बेटा, यानी कि सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है कि फैट को ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है किसके अंदर, दैट इज़ द इमल्सिफाइड फैट. ठीक है बेटा, इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट होना किसका ज़रूरी है, ये ट्राइग्लिसराइड है. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल, यानी कि बाइल की प्रेजेंस में इसका इमल्सिफाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्राइग्लिसराइड का. उसके बाद जो इमल्सिफाइड फैट है, इमल्सिफाइड फैट दैट एक्टेड अपॉन बाय द पैंक्रियाटिक लाइपेज टू फॉर्म डाइग्लिसराइड and fatty acids. Okay, then this diglyceride will be acted upon by the pancreatic lipase to form monoglyceride plus fatty acid. Okay, then this monoglyceride will be further acted upon by pancreatic lipase to form fatty acid plus glycerol. Is it clear? तो ये आपने देखा किस तरीके से आपके पास जो लाइपेज है वो एक्टिवेट होता है पहले बाइल से, फिर आपके पास जो फैट है वो कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में. इज इट क्लियर? ये बात आपको समझ आ रही है? जिस तरीके से हमने कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के बाद हमें क्या मिला, ग्लूकोज यूनिट,
प्रोटीन की डाइजेशन के बाद हमें मिला अमीनो एसिड, और फैट की डाइजेशन के बाद हमें क्या मिला, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। पर इसमें इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ बाइल, क्योंकि अगर बाइल नहीं है तो फैट की इमल्सिफिकेशन नहीं होगी, और लाइपेज एक्टिवेट ही तब होते हैं जब फैट की इमल्सिफिकेशन हो जाती है। ओनली देन द लाइपेज कैन ब्रेक डाउन द फैट इनटू सिंपलर फॉर्म, दैट इज द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ओके, नाउ द अनदर कंपोनेंट दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। सो डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड in mouth, saliva, in stomach, no enzyme is present for the digestion of the nucleic acid. Digestion of the nucleic acid occurs in the small intestine. We got here two type of the juices. One is the pancreatic juice and other is the intestinal juice. So first is the action of pancreatic juice. ठीक है बेटा, तो pancreatic juice का क्या एक्शन होगा? First of all, DNA that will be acted upon by the enzyme DNases, and it form the DNAs. It form the deoxyribonucleotides. ठीक है बेटा, और RNA that is acted upon by the RNAs to form ribonucleotides. ठीक है बेटे, ये क्या बना देगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड डीऑक्सी-राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये बात समझ आती है। फिर क्या होता है, एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस। अब इंटेस्टाइनल जूसेस में क्या होगा, जो हमारे पास जैसे मान लो डीऑक्सी-राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो कोई भी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, चाहे डीऑक्सी चाहे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स they will be convert into nucleosides plus inorganic phosphate in the presence of enzyme nucleotidases। फिर ये जो nucleosidase है, that will act upon the nucleosidases and we will get the nitrogenous base and sugar, pentose sugar। इज इट क्लियर? तो फाइनली आपको जब डीएनए ब्रेक होगा, यू विल गेट द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस एंड द शुगर। सो दिस इज द डाइजेशन ऑफ द DNA or the RNA, means further they will break up into the nucleotides and then nucleosides, and further at last they will break to its monomeric unit, that is the nitrogenous base and the sugar. Is it clear? Now a very important topic, that how the different hormones that play very important role in the digestion, or how the secretion of the hormone is controlled। जब हमने स्टमक, पैंक्रियाज, लिवर ये सब पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के ये डिफरेंट पार्ट एंजाइम सिक्रीट करने के साथ साथ बहुत सारे हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। उन्हीं में से कुछ हार्मोन यहाँ पे है। ये क्या है, स्टमक है, ये लिवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये पैंक्रियाज है, और ये क्या है, ड्यूडेनम है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स हैं। सबसे पहला जो हार्मोन है, दैट इज़ द गैस्ट्रिक हार्मोन, दैट इज सिक्रेटेड बाय द stomach itself and it stimulates the secretion of the gastric juices. Okay, this is the gastric hormone that stimulates the stomach to secrete its juices. Then we have the enterogastrone, that it is secreted by the duodenum and it inhibit the gastric juices secretion, यानी कि ये उससे उल्टा काम करेगा। enterogastrone minus means it inhibit the secretion of the gastric juices. Then we have the secretin. This is the first hormone which was discovered by the scientist. It is secreted by the duodenum lining and it increase the secretion of the bile. Very very important, means it increase the secretion of the bile by the liver. Is it clear? Now the next hormone is CCKPZ. बड़े ध्यान से सुनना है, कोलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन। मतलब कॉली का मतलब है बाइल,
सिस्टो का मतलब गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट आती है ना वहाँ से। काइनिन का मतलब रिमूव करना, पैंक्रियाज, जाइमिन का मतलब रिड्यूस करना। यानी कि ये हार्मोन क्या कहता है, गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने आप को खाली करे, यानी कि वो बाइल सिक्रीट करे, और पैंक्रियाज क्या सिक्रीट करे, पैंक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करे, ठीक है। फिर है ड्यूक्रोनाइनिन, जो क्या करता है, इट इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द ड्यूडेनम वॉल एंड इट इज स्टिमुलेट द ब्रूनर ग्लैंड टू सिक्रीट द म्यूकॉइड फ्लूइड विच एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एसिडिक कंडीशन, है ना, म्यूकॉइड फ्लूइड रिलीज किया था। फिर आता है एंटेरोकाइनिन, दैट इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट स्टिमुलेट द क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून टू सिक्रीट द इंटेस्टाइनल जूसेस। क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून याद है आपको, तो उसको स्टिमुलेट करता है कि वो इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करें। देन विलिकाइनिन सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड इट इट इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ द villi. Then somatostatin, that is secreted by delta cells of the islet of Langerhans। आपने पढ़ा था ना बीटा, अल्फा, डेल्टा, तो जो डेल्टा सेल somatostatin सिक्रीट करती हैं, that is the inhibitory, means it inhibit the alpha and the beta cells to stop their secretions, है ना, वो उसको stop करती हैं अपने हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए। Then we have the pancreatic polypeptide, this is the hormone that is secreted by the pancreatic polypeptide cells of the pancreas itself and it inhibit the secretion of the juices of the pancreas। यानी कि pancreatic polypeptide पेंक्रियाज से ही सिक्रीट हुआ है और ये क्या कर रहा है, पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल ने सिक्रीट किया है, ये इनहिबिट कर रहा है कि पेंक्रियाटिक जूसेस के सिक्रीशंस रिलीज ना हो, समझ रहा है। तो इसमें से बहुत सारे हार्मोन ऐसे हैं जो स्टिमुलेटिव हैं और बहुत सारे हार्मोन ऐसे हैं जो इनहिबिटरी हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए बिकॉज दिस इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द डिफरेंट हार्मोन इन द डाइजेशन और हाउ दीज हार्मोन्स आर कंट्रोलिंग, मीन्स हाउ द प्रोडक्शन इज कंट्रोल, किस तरीके से इनका क्या एक्शन है बाइल जूस की प्रोडक्शन में, इंटेस्टाइन जूसेस की प्रोडक्शन में, पैंक्रियाटिक जूसेस की प्रोडक्शन में, कैसे ये ऑटोमेटिकली अपने आप रिलीज होते हैं और किस तरीके से इनकी प्रोडक्शन जो है अपने आप बंद हो जाती है। सो टुडे इन दिस वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। 4 digestions we have done, and one more important thing, that is the role of gastrointestinal hormone. This question is 2 times important because this is in the first chapter of the animal physiology, and when we will study the hormone chapter at the end of this unit, chemical control, there also the same topic will come, so you should prepare it very nicely. Is it clear?